میں التماس کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پڑھائیں، اپنی نصیحت آمیز خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مزلہ فرمائے۔ پورا مجمع پیچھے سے لے کر آگے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک میرے نعرے کا جواب پرجور لہجے میں دیجئے، بلند آواز سے میرے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لحد میں عشق شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ صراط، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ چھوڑی سنا ہمیں اپنے سے بڑی بوال ہے۔ چھوٹو اٹھنا پانی اٹھا لو تو بات اٹھا لو تو اٹھا لو پانی بٹ لیا گور کہاں رکھا ہے مولانا جنید کے لگا رکھا ہے۔ ہاں جانا جب پڑھائی جاتے تو طلبا ہے وہاں کے مدرسے پہ پڑھنا جاتا پھانسی بیٹھنے کا وہاں شادی کے آج بھاؤ نہیں ملا تھا، آس کے اوپر آس کی چلا تھا، میں اب کے نے بہت کہتے لاؤ آس کے پانی وانی کا انتظام کروائے دو، پانی وانی کا انتظام ہے۔ اعظم بھائی پانی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیکم وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش فرمانے پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیش مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے،
اللہ و رسول کے ذکر کی مبارک مجلس میں شریک سعادت ہے۔ گاؤں کے جیانے جوانوں نے، بزرگوں نے مل کر اس مبارک محفل کو رچایا بسایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو دین و دنیا کے تمام تر خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر نور میں جلوہ افروز ہے۔ معمار قوم حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ مدہ ذلہ نورانی، دیگر احباب علماء تشریف رکھتے ہیں۔ مولا سبھی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات اس مبارک محفل کو سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے بیشتر شاعر خوش فکر حضرت قاری احمد الفتاح صاحب قبلہ سے آپ حضرات نے بہت ساری نعتیں مطلبتیں سماعت کر لی۔ کچھ دیر اور آپ حضرات ساتھ ہیں، انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں ہو جائیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ رب کا احسان و کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک چمکتا ہوا دین عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کا مقدس دامن عطا فرمایا۔ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد سچا مذہب مل جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پاتا ہے وہ نعمتیں سب فانی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اصل ہے مذہب، اصل ہے عقیدہ، اصل ہے اعمال جو کہ اس کے ساتھ جانے ہیں۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں تقسیم اپنے اور پرائے میں یکساں رکھی، بلکہ اپنوں سے کہیں زیادہ اس نے غیروں کو دیا۔ لیکن جب دین دینے کی بات آئی تو جن بندوں سے اس نے محبت کیا انہیں اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا۔ ہم اور آپ وہ کامیاب امت میں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبران اس دنیا میں تشریف لائے، تمام امتوں میں رب نے اس امت کو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ وجہ اعمال نہیں بلکہ وجہ یہ تھی کہ ہمیں امام الانبیاء کا مقدس دامن نصیب ہو گیا، اپنے محبوب کا مقدس امتی اس نے بنایا۔ یہ ایسی بڑی فضیلت ہے جو کائنات میں اس امت کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے اسی بنیاد پر اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت دی گئی۔ جو نبی کا زمانہ وہ زمانہ بے مثال، جو نبی کے اوپر نازل ہوئی کتاب بے مثال، شریعت بے مثال، دین بے مثال، اور ان بے مثالوں سے نسبت کی بنیاد پر رب نے ہم گنہگاروں کو بھی بے مثال کر دیا۔ ہم اس دنیا میں ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ہیں، بہت سی نگاہیں ہم پر ٹکی ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم نے مقدر سے جو قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں اسے سنبھالنے اور آخری سانسوں تک اپنے ساتھ رکھنے اور اس چمکتے ہوئے دین، ایمان اور عقیدے کو اس دنیا سے لے جانے میں جس نے کامیابی حاصل کر لی وہ سب سے بڑا دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ دنیا میں آنے والوں نے ترقی کے بہت سارے دروازے دکھائے اور بڑے بڑے نعرے لگائے گئے ترقی کے، لیکن سارے نعرے خاموش کر دیے گئے۔ جب دین اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ساری روشنیاں مدھم پڑ گئیں۔ جب سے لے کر کے اب تک اسلام پورے طور پر اس دنیا پر راج کر رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ مذہب چلتا رہے گا۔ ہمیں اور آپ کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان و عقیدے کے ساتھ ہم قائم رہیں، تو ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔
وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت و قوت کے مالک ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں۔ اگر ہمیں مٹانا ہی ہوتا تو آخری نبی کی امت میں پیدا نہ کیا جاتا، کیونکہ جب تک نبی کے نبوت کی جلوہ گری، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کی چمک اس کائنات پر باقی ہے، اس وقت تک اس امت کی سانسیں بھی اس دنیا میں باقی ہیں۔ کبھی بھی اس امت کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اسے وہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو لازوال ہیں، وہ مٹنے والی نہیں ہیں۔ قرآن صبح قیامت تک چلنے والی کتاب، شریعت صبح قیامت تک، دین صبح قیامت تک، مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کا دور صبح قیامت تک، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو پروردگار عالم نے جس عظیم ہستی کے مقدس دامنوں کی خوشبو ہم گنہگاروں کو عطا فرمائی، وہ کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا اور کبھی ہمیں مٹنے نہیں دے گا، اور ہم پر وہ عذاب بھی نہیں آ سکتے ہیں جو پچھلی امتوں پر آئے، کیونکہ وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت بھری بدلیاں ہمارے سروں پر موجود ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے۔ ہم کل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت و سیانت کے دائرے میں تھے، آج بھی ان کی نگاہ کرم تلے پل رہے ہیں، اور صبح قیامت تک اس وجود سے خوشبو اسی بنیاد پر آتی رہے گی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہی کائنات میں وہ عظیم نسبت ہے کہ دنیا کی تمام نسبتیں ایک طرف، مدینے والے تاجدار کی نسبت ایک طرف۔ تو ہمیں اور آپ کو وہ ذمہ داری نبھانی ہے اس دنیا میں رہ کر کے، جس کے تحت ہمیں اس دنیا میں رکھا گیا، جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر وہ ذمہ داری نبھانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جتنا دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور عطا کیا جائے گا، اور جو رتبے اب ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ رتبے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس دین میں بڑھنے کے سارے آپشن موجود ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی مانگنے والا چاہیے، کوئی دستے سوال دراز کرنے والا چاہیے، کوئی ترقی کے لیے کوششیں کرنے والا چاہیے، کیونکہ اس نے بغیر مانگے ہی جب اتنا دے دیا تو مانگنے پر کتنا عطا کرے گا۔ بغیر مانگے ہی جب یہ ساری چیزیں دے دی، ہم نے نہ کوئی کوشش کی، نہ ہم کبھی انتظار کیے، نہ ہم کبھی دوڑ لگائے، بس ماں کے آغوش میں ہم نے آنکھیں کھولی، کان میں آ کر کے مؤذن نے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کی صدا دی، اور وہی بتا دیا مبارک ہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کر دنیا میں آیا۔ تو جب بغیر مانگے ہوئے یہ ساری چیزیں اس نے دے دی تو پھر مانگنے پر کتنا عطا کرے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، رب نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ مجھ سے جب کسی چیز کو طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اسے اتنا عطا کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اگر سوال میں یا رب کہتا ہے تو 70 مرتبہ میری رحمتیں یا جو ہے اس بندے کا نام لے کر کے جواب دیتی ہے، اس سے قریب تر ہوتی ہے، کیونکہ وہ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات میں رکھا۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد جب دوسری چیزوں نے گھیراؤ کیا تو پھر یہ دماغ آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگے، فکر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس سے پہلے انسانوں کو آزادی دی جا چکی ہے۔ جس آزادی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے وہ آزادیاں انسانوں کو دی گئی، اور آزاد رہنے میں انسان سوچتا ہے کہ ہم بے لگام ہو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی طرف سے کوئی ٹوکے نہ تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ فکر حضرت آدم کے دور سے لوگوں کی چلی، مخلوق میں آزادانہ خیال رکھنے والے لوگ پلتے رہے۔ وجہ یہی ہوئی کہ نبیوں کی مخالفت کی گئی،
کیونکہ ہر دور میں ایسے ذہن کے لوگ موجود تھے، ایسے مکروہ سوچ و فکر کے لوگ موجود تھے کہ جنہیں سیدھا راستہ بتایا گیا، جنہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی گئی، جنہیں حق و صداقت کی روشنی عطا کی گئی، انہوں نے اٹھ کر کے ان پیغمبروں کی مخالفت کر دی، یہاں تک کہ معاذ اللہ نبیوں کا قتل بھی اسی زمین پر ہوا، نبیوں کو عیبدار بھی کہا گیا معاذ اللہ، نبیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ پچھلی تاریخوں میں آپ جو ہے جھانکیں گے اور علماء سے آپ سنتے بھی ہوگے کہ کس قدر نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، کس قدر انبیاء کرام کو جو ہے طعنے اور تشنیع کے الفاظ استعمال کیے گئے، گھروں سے بے گھر کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی۔ کیا غلطی تھی ان کی، خطائیں کیا تھی، انہوں نے کیا لے لیا تھا صاحب امت سے؟ آج تک کسی سے مذہب نے کچھ مانگا؟ سوائے دینے کے مذہب نے کوئی چیز کا مطالبہ کیا آپ سے؟ نہیں صاحب، سب کچھ دے دیا پھر بھی کچھ نہیں مانگا، اور آج بھی سب کچھ دے رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں مانگ رہا، اس کے بعد بھی بغاوت ہے، اس کے بعد بھی بغاوت ہے۔ یہ پچھلی تاریخوں میں ہوئی، اور نبیوں کو بعد اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو امتحان کا دور چلا بستی والوں نے نکال کر کوڑے کی ڈھیر پر پھینک دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیبی قرار دیا گیا معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچانے کی ناپاک سازشیں کی گئی، یہ تو رب نے بچا لیا۔ تو یہ بندوں کا اتیرا رہا کہ آنے کے بعد جو انہیں ان کے فائدے کی بات کرے وہ اسے اپنا دشمن سمجھنے لگے، جو انہیں بچانے کی کوشش کرے پلٹ کر انہوں نے اسی پر پتھر اٹھا دیا اور اسی کو نشانہ بنایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا۔ بندے یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہمیں مذہب کا لگام نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ بھائی نبی تو یہی کرتا نا کہ یہاں نہ بیٹھو یہاں بیٹھ جاؤ، یہ نہ کرو یہ کر لو، نبی تو یہی کرتا کہ راتوں کی تاریکیوں میں تمہیں یہ عمل کرنا ہے، دن کے اجالے میں یہ عمل کرنا ہے، فلاں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کا یہی تو مشن ہوتا، اور کیا لینے کے لیے؟ یہاں تک کہ انہوں نے سب کچھ دینے کے بعد جو ہے لا اسألکم علیہ اجرا کا اعلان کر دیا کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانتے ہیں، کوئی محنتانہ نہیں مانتے ہیں۔ تبلیغ کیا، راتوں دن چلتے رہے، 950 سال اس جو ہے قوم کے پیچھے انبیاء دوڑ لگاتے رہے، لیکن اس کے جواب میں معاذ اللہ انہوں نے الٹ کر کے نبیوں کے اوپر عیب لگائے، انبیاء کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ یہی اس دور میں بھی ہوا جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 63 سالہ زندگی کی قربانیاں اس امت کے حوالے کی، اور لوگوں کو ان کے فکر کے اعتبار سے، ان کے تمام تر تہذیب و تمدن کے اعتبار سے جب دیکھا کہ بگاڑ ہے اور یہ دلدلوں میں پھنستے جا رہے ہیں، تو نبی نے اٹھ کر کے انہیں ان کے کمر سے پکڑ کر جہنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ کیا، ان کے ایمان و عقیدے کا اصلاح کیا۔ یہ دور چلتا رہا، لیکن راتوں دن جس امت کے پیچھے نبی نے کام کیا تھا، لوگوں میں کچھ لوگ پتھر لے کر کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ میدان میں آئے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اگر نبی اپنے پاور پہ آ جائے تو ایک ادنا سی نگاہ غضب بھی پورے بندے مل کر برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر نبی اپنے پاور پر آ جائے تو ادنا سی ایک پھونک بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ تمام تر دشمنیاں چلتی رہی، وہ بچانے کی کوشش کرتے رہے، یہ بھاگتے رہے اور طرح طرح کے معاذ اللہ الزامات لگاتے رہے۔ جادوگر کہا گیا، انہیں ساحر کہا گیا، انہیں نہ جانے کون کون سی ففتیاں کسی گئی، اونٹوں تک کی اوجھڑیاں سر مبارک پر ڈالنے کی ناپاک سازشیں رچی گئی۔ تو یہ آزادی دنیا چاہتی، اور آج بھی کچھ نئی نسلیں اس فکر کے ساتھ پلنا چاہتی ہیں کہ ہمیں قرآن کا اصول نہیں چاہیے،
چاہیے, شریعت کا اصول نہیں چاہیے, مذہب کی بندش نہیں چاہیے, ہم پر کوئی لگام لگانے والا نہ ہو, کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. ہم اپنی زندگی کا جتنا بھی عمل کریں وہ آزاد رہ کر کریں. بیچ میں کچھ خواتین نے بھی نعرہ لگایا تھا, ہمارا جسم ہماری مرضی, ہمیں کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے, ہم جیسے چاہے لباس پہنے, جیسے چاہے اپنے بدن کو ڈھکے نہ ڈھکے, ہماری مرضی ہے, کوئی اس پر بین نہیں لگا سکتا ہے. ہم نے کہا آزادی تم چاہتے ہو, اور جس کو تم آزادی کہہ رہے ہو وہ حقیقت میں موت ہے, موت. اور مذہب جس کو آزادی کہہ رہا ہے وہ جنت کا راستہ ہے, راستہ جو اپنی طبیعتوں سے آزاد ہونے کی کوشش کیے وہ مٹے اور مٹتے چلے گئے, اور جنہوں نے شریعت کا ساتھ لیا اور مذہب کے لگام کو اپنے ساتھ رکھا وہ کل بھی کامیاب تھے, آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے. بے شک سبحان اللہ, حق ہے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. بھائی تقریباً 550 سال یا 600 سال کوئی نبی نہیں بھیجے, بند کر دیا, سارا سلسلہ بند. جی لو اپنی طبیعت کے, دیکھتے ہیں کیسے ترقی کرتے ہیں, کوئی لگام نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی قانون نہیں. اب انسانوں کو تو خوب ترقی کر لینی چاہیے بھائی, اتنے لمبے عرصے کی آزادی مل گئی, کوئی ذرہ برابر بھی ٹوکنے کے لیے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ کوئی نبی آیا ہی نہیں. تو ترقی ہو جانی چاہیے, زبردست ترقی ہونی چاہیے. لیکن 550 یا 600 سال کی آزادی میں کون سی ترقی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے تاریخیں موجود ہیں. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیغمبر کے اصولوں کو اپنانا نہیں چاہتے, ہم بے لگام رہنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ آج نئی نسلیں چند مکروہ انگریزی کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کر کے علماء کو حقیر سمجھنے والے ناہنجار جو آج سوشل میڈیا پر بکواس کر رہے ہیں کہ ہمیں مذہب کا لگام نہیں چاہیے, یہ سب پراچین کتھائیں ہیں, یہ دقلانوسی دقلانوسی زندگیاں ہیں, ہم اس پر چلنا نہیں چاہتے ہیں. ہم آزاد رہ کر جیسے چاہے گھنٹوں ناچے روڈ پر, ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو, چاہے شراب کے اڈوں پر رہے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, چاہے کوچوں میں زنا کاریاں کرے کوئی لگام لگانے والا نہ ہو. جیسے آج نعرہ لگ رہا ہے, یہ نعرہ بہت پہلے اس دنیا میں لگا اور انسانوں کو چھوڑ دیا گیا کہ ذرا خود سے جی کر کے بتاؤ. تو 550 سال یا 600 سال میں تقریباً جو انسانوں کو آزادی دی گئی تھی کہ خود سے جینا چاہتے ہو جی کر بتاؤ, تو جب انہوں نے جینا شروع کیا تو ترقی تو چھوڑو صاحب, سگی ماؤں سے نکاح کر لیا, سگی ماؤں سے نکاح کر لیا. ترقی کیا کیا, سگی بہن کو بیوی بنا لیا, معاذ اللہ. ترقی کیا کیا, کیچوے سے لے کر کے پرگو سمر تک جتنے بھی ہیں ہر ایک کو انہوں نے خدا مان لیا. کیچوے سے لے کر کے, کیچوا بالکل 0 پوائنٹ جو مچھلی کے لیے چارہ استعمال کیا جاتا, وہ بھی ایک دور میں اس دنیا میں خدا رہ چکا ہے, وہ بھی ایک دور میں خدا رہ چکا ہے. اپنے جیب میں خدا کو لے کر چلنے والی قومیں, انہوں نے سوچا کہ ہم نبی کے بغیر پیغمبر کے بغیر ترقی کر جائیں گے. تو حالت یہ ہوئی صاحب, کئی لاکھ بیٹیاں زمین میں زندہ دفن ہو گئی, پیغمبر کا ساتھ نہیں ملا تھا. نہ جانے کتنی بیوائیں جو ہے زندہ چتاؤں کو ان کے زندہ شوہر کی چتا کے ساتھ رکھ کر کے نظر آتش کر دیا گیا. نہ جانے کتنے گھر
घर लूट लिए गए, यतीमों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, घर से निकलना दुश्वार हो गया, नंगे होकर काबा का तवाफ कर डाला, 360 माबूदाने बातिला का जमावड़ा खुद खाने काबा में कर डाला, हरम की हुर्मतों को पामाल कर डाला। ये नंगी नाच जब नाचने लगे और तरक्की के बजाय ऐसे बस्ती में चले गए कि जानवर भी शर्म महसूस करे, ऐसे जिल्लत के कारे मजल्लत में गिरे कि कोई दूर दूर तक संभालने वाला नजर नहीं आ रहा था। एक बैग पूरी दुनिया चीख उठी, मेरे मालिक हम बगैर नबी के जी नहीं सकते। भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर आने वाहिद में इन कुफ्र की तुगयानियों का खात्मा करने वाला हो। भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर के करती हुई करी हुई बच्चियों को जिंदगी अता कर दे। भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर के बेवाओं के सरों की छीनी हुई चादरों को वापस दिलवा दे। भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर गरीबों की उंगलियां पकड़कर अमीरों के कंधे के बराबर खड़ा कर दे। भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रख दे। पूरी दुनिया इंसान तो इंसान, जानवर भी तमन्नाई कि नबी आ जाए, चरिंदों परिंद भी तमन्नाई कि नबी आ जाए। एक एक पौधे जमीन के जर्रात तक तमन्ना कर रहे, समंदर की मछलियां तक तमन्ना कर रही। तो जब इस कदर दुआएं उठी, 550 साल बहुत ज्यादा दिन होते हैं साहब, बहुत ज्यादा अरसा होता है। जब इतनी तमन्नाएं उठी, हर एक तरफ से पैगंबर के आमद की इल्तिजाएं थी, तो रब ने करम फरमाया, कहा जब मांग रहे हो तो दे रहा हो, और ऐसा वैसा नहीं दे रहा हो, जितना अब तक दिया उनका इमाम दे रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक़ है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नबी की आमद होती है, जिन पौधों ने मायूसी में जमीन पर अपना सर रख दिया था, उठकर मुस्कुरा पड़े साहब, सूखे चश्मों में उबाल आ गए। बेमौसम दरख्तों में पके हुए फल मक्का की जमीन पर टपक रहे थे। हजरत आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी झोपड़ी में बैठकर किसरा के महलात को अपनी निगाहों से देख रही थी। बसरा के ऊंटों की गर्दनों में पड़ी हुई रस्सियां उनकी नकेलों को मुलाहिजा कर रही थी। पूरे मक्का में शोर उठा कि ये किसकी आमद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे हो, काबा की कोठरी आमिना की झोपड़ी की जानिब झुकी जा रही है, किसकी आमद है। तो जिनको अपनी मर्जी से दिया था, जिनको अपनी मर्जी से दिया था, किसी एक नबी की आमद पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जिस जात को मांगने पर अता किया, इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने एहसान कर दिया कि तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक़ है, माशाअल्लाह। बगैर मांगे जिन्हें दिया था उनकी आमद पर एहसान नहीं, लेकिन कायनात के सवाल पर जिस अजीम हस्ती को रब ने भेजा था, उसकी आमद पर एहसान जतलाया कि मैंने तुम्हें सिर्फ नबी और रसूल की सूरत में नहीं, बल्कि अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया, अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस ज़ात दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी होती है, जलवागरी होती है, तो कायनात में एक अजब इनकलाब आता है। आज जो मजहब से आजाद रहने की नापाक साजिशें रच रहे हैं और मजहब पर चलने वालों को हकीर समझा जाता है। मजहब पर चलने वालों को कुछ लोगों ने कहा कि ये सब मौलवी मुल्ला की कहानी है। बाकी भाई सही जिंदगी है कि पढ़ो लिखो, ऑफिशियल काम करो, पीओपी घोरो और बस सिटिंग फिटिंग आपको आनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा फंसने काम नहीं, मौलवी मुल्ला काम है भैया। मस्जिद मस्जिद मदरसा, मदरसा घर घर, मस्जिद मदरसा, ये मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक है भैया, बाकी अपने लोग सब आजाद हैं। वजह यही हुई,
200 बाराती साहब खड़े थे, तवाइफें नाच रही थी, एक भी आदमी उसमें बोलने वाला नहीं था। अगर कोई खड़े होकर बोल रहा था तो मस्जिद की चौखट से एक आलिम दीन बोल रहा था कि तुम ये हराम कारियां बंद कर दो, तुम्हारे निकाहों की बरकतों का जनाजा निकल जाएगा, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा जो कलमा इनका वो कलमा इस मौलाना का, जो कलमा जो किताब इनकी वो किताब इसकी, जो नबी इनका वो नबी इनका, जो खुदा इनका वो खुदा इसका। इन्होंने खामोशी की, ये बोल पड़ा, वजह क्या थी? तो कहा वो जहालत की तारीकियों में चुप थे, ये इल्म की रोशनी में बोल रहा था, मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तर्जमानी कर रहा था। तो मजहब के बगैर दुनिया में कोई सांस भी नहीं ले सकता है। मजहब ऐसे आबे हयात का नाम है कि जिंदगी में हर एक मोड़ पर मजहब की जरूरत पड़ती है। हम समझते हैं मजहब सिर्फ नमाज रोजा को कहते हैं, मजहब सिर्फ जो है हज और ज़कात को कहते हैं, मजहब सिर्फ अमाले खैरो खैरात को कहते हैं। नहीं साहब, अगर इतने में मजहब को महदूद कर दिया तो भूल है, बल्कि रास्ते चलते हुए एक पड़े हुए कांटे को उठा करके किनारे रख देना, ये भी मजहब। बेशक ठोकर लगने वाली चीज को उठा करके अलग हटा देना, ये भी मजहब है। एक जानवर तक पर भी शफकत और मेहरबानी करके गुजर जाना, ये मजहब है। माँ के तलवे को चूम करके दुआएं ले लेना, ये भी मजहब है। बाप को अपने कंधों का सहारा दे करके मस्जिद तक पहुंचा देना, ये भी मजहब है। मजहब को हमने चंद चीजों में महदूद कर दिया, बल्कि मजहब का दामन इतना वसी है साहब कि अगर मजहब के दायरे में दुनिया सांसें लेने लगे तो कभी भी इसकी जिंदगी तबाह नहीं हो सकती है, आफतें नहीं आ सकती है, क्योंकि मजहब ही से मुल्क में मसावात के दर्स दिए जाते हैं, मजहब ही से गरीब की हिफाजत होती है, मजहब ही से आबादियों की हिफाजत होती है, मजहब ही से बेटी की आबरू बचाई जाती है, मजहब ही से पेशानियों के वकार महफूज किए जाते हैं, मजहब ही से अकीदो अमाल महफूज किए जाते हैं। अगर मजहब को छोड़ा तो याद रखो दुनिया की जितनी भी ज़बानें सीख लो, जितने भी हुनर सीख लो, वो सिर्फ हल्क के यहीं तक महदूद है। अगर मजहब छोड़ोगे तो ये यहीं से ऊपर चली जाएगी, और मजहब अपनाओगे तो सर की चोटी से कदम के नाखून तक मजहब है। दुनिया सिर्फ हल्क तक सफर करती है, मजहब का पर जो है सर की चोटी से पैर के नाखून तक तुम्हारे वजूद को हिफाजत में रखता है। ये मजहब ही का करम है जो तुम्हें इंसान कहा जा रहा है। हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन नतीजा क्या हुआ भाई? नबी ने इतनी कुर्बानियां दी, और बाहर जितनी कुर्बानियां दी उससे कहीं ज्यादा नबी ने अंदर कुर्बानियां दी। भाई अंदर की मेहनत 53 साल है, बाहर की मेहनत 10 साल है। अंदर की मेहनत 53 साल है, बाहर की मेहनत 10 साल है। 53 साल मक्का को दे दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। हाँ, 53 साल अपनी जिंदगी का कीमती वक्त दे दिया, क्योंकि अगर घर में रोशनी होती है तो बाहर भी उजाले मिलते हैं। अगर घर के चिराग को गुल कर दोगे साहब तो बाहर उजाले मांगते भटकते रह जाओगे, कोई दूर दूर तक देने वाला नजर नहीं आएगा। हमने दूसरों पर तो ताने करना सीखा, लेकिन अपने घरों के अंदर झांकना नहीं सीखा। तो आज आजादी का जो नारा लगाया जाता है कि मजहब से हम आजाद रहना चाह रहे हैं, इबादतें हमारी जिंदगी में, सजदा हमारी जिंदगी में नहीं है, सोमो सलात की पाबंदियां हमारी जिंदगी में नहीं है, हमने सिर्फ हफ्ते में जुमा में जाना समझ लिया कि यही बहुत बड़ा जिहाद है। और कुछ लोग तो है जो जुमा में भी जहमत नहीं करते, डायरेक्ट फिर ईद बकरीद मिलते हैं, और सबसे आगे जा करके ऐसे गले मिलेंगे कि लगता है तहज्जुद भी पढ़ के आए होंगे। हाँ, अगर इमाम बहुत हिफाजत से सीना ना लगाओ तो कहो नूरामेंट लगाओ पर
हाँ, जो रोजा ना रहा था वो तो बिल्कुल ठोक के सीना लगावत है और जोर से नहीं भज से मिला था तो कहा गुर्दा उर्दा खराब हो लगे। मतलब सबसे आगे जा करके इमाम से बड़े बुलंद आवाज से नियत पूछने वाले वही लोग रहते हैं जो पूरे रमजान रोजा नहीं रखते। हम सोचते हैं कि मजहब की पाबंदी हमें नीचे ले जाएगी, इसलिए हमारी जिंदगी में सब कुछ दिखता है, मजहब नहीं दिखता। मजहब नहीं दिखता भाई, लिबास में मजहब नहीं दिखता, गुफ्तगू में मजहब नहीं दिखता, चाल चलन में मजहब नहीं दिखता, शादी ब्याह में मजहब नहीं दिखता। कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? अचानक छटपटाए लागे, अचानक छटपटाए लागे, काव भवा केहू कुछ पता नहीं, ऐठे बैठे लागे, वही मैया कुरकुराए लागे तो कहीं नहीं पढ़ो सूर्य यासीन पढ़ो। आ करके सिरहा ने सूर्य यासीन शुरू किया, कुछ सुकून हुआ, बप्पा टेढ़ हो गए। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अफसोस है तुम पर कि तुमने कुरान मरने के लिए इस्तेमाल किया। अफसोस है तुम पर कि तुमने कुरान मरने के लिए इस्तेमाल किया। कुरान तो तुम्हें जिंदगी देने के लिए आया था, काश कि इससे पहले भी पढ़े होते। तो कुरान खानी तीजा 40वां फातिहा, इसमें हमने मजहब को इस्तेमाल किया और जहां बहुत ज्यादा जरूरत थी वहां मजहब को छोड़कर हम बेलगाम होने की कोशिश करने लगे। तो एक ग्रुप तो ये हुआ, दूसरा एक ग्रुप हुआ जो पिछली तारीखों पर अमल किया कि जो पैगंबरों को पत्थर मारे गए, पैगंबरों को गालियां दी गई मादअल्लाह, पैगंबरों का कत्ल किया गया मादअल्लाह। तो एक दूसरा ग्रुप उठकर खड़ा हुआ। अब चूंकि इस उम्मत में अमल करने वालों की तादाद ज्यादा रही है और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह, इस उम्मत में अमल गालिब रहेगा, अमल गालिब रहेगा, क्योंकि इस उम्मत में हर बस्ती के कुर्बो जवार में कहीं ना कहीं अल्लाह के वली की हिफाजत मौजूद है। तो अमल इस उम्मत में ज्यादा रहेगा, खुराफाती रहेंगे मुख्तसर। अभी और बात है कि ज्यादा कूदे छटके लागत है, कुछ नाचे लागत है जोर जोर से, तो लागत है कि सभी नाचत है, ऐसा नहीं है। जिनके फेचकुर निकलते हैं उनकी तादाद कम है, अमल करने वालों की तादाद ज्यादा है। तो दूसरा ग्रुप निकला तो तलवार तो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसकी औकात नहीं थी, पत्थर ईंटा इस्तेमाल नहीं करता था, उसकी औकात नहीं थी। तो उसने सोचा कि इसमें नबी को निशाना बनाने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए, कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए। भाई पिछली तारीखें हमने बताई कि नबियों को निशाना बनाया गया, नबियों ने उनसे कुछ लिया नहीं लिया साहब। हमारे नबी ने भी तो कह दिया कि तुमसे कोई उजरत और मुआवजा हमें नहीं चाहिए। हमने जो तबलीग किया, जो तुम तक दीन पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, पैगाम पहुंचाया, तुम्हें मारिफत रहमान अता कर दिया, उस पर हमें तुमसे कोई उजरत, कोई मुतालबा। सहाबा जबकि रुपया पैसा लेकर पहुंचे भी हुए थे, रुपया पैसा लेकर बगैर कहे हुए चौखट पर हाजिर हो गए। मेरे आका रातों दिन आप हमें दे रहे हैं, 24 घंटा हमारी फिक्र में, मुसल्ले पर आप सजदे में भी जाते हैं तब भी फिक्र उम्मत की, कयाम में भी रहते हैं तब भी फिक्र उम्मत की, गारों में रोना भी उम्मत के लिए। अगर जरा भी बदलियां आ जाए तो हिफाजत उम्मत की दुआ आप करें, तेज आंधियां आए तो उम्मत की हिफाजत की दुआ आप करें, अगर तूफानी हवाएं चले तो उम्मत की हिफाजत की दुआएं आप करें। आप 24 घंटा हमें दे रहे हैं, हर एक वक्त हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ गरीबों का तोहफा है, मेरे आका कबूल कर ले। लेकिन मना कर दिया गया साहबा, इस पर हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए। तो एक तो ये कि कुछ लोगों ने मजहब से आजादी का नारा लगाया, एक दूसरी कौम उसमें उठी और उसने मादअल्लाह पिछली तारीखों की तरह नबी की जिंदगी को टारगेट किया, नबी की जिंदगी को टारगेट किया। और ऐसे वैसे नहीं भाई, अगर ये लोग खुले तौर पर अगर आ जाते, पहले खुले तौर पर आ जाते स्टार्टिंग में, तो इनको कच्चा चबा लिया जाता है।
खुले तौर पर अगर पहले स्टार्टिंग में आ जाते तो कच्चा चबा लिया जाता, लेकिन ये आए कैसे? दाढ़ी रख के आए, टोपी लगा के आए, कुर्तामा पजामा पहन के आए, हाँ, मस्जिद और मेहराब का सहारा लेकर आए, मदरसा और वो भी बंद, वो भी उसका सहारा लेकर आए। सारी चीजें लेकर के नबी की साथ को निशाना बनाया, नबी की बशरियत पर उंगली उठाई, नूरानियत पर उंगली उठाई, इल्मे गैब पर उंगली उठाए, अख्तियारात मुस्तफ़ा को निशाना लगाया, इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर जो है तानो तशनी किए, शफात मुस्तफ़ा को निशाना बनाया गया। इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के पैगंबर की साथ पर हमला, उनकी सीरत पर हमला, उनके किरदार पर हमला, उनके इल्म पर हमला, उनके कैरेक्टर पर हमला, ये सारी चीजें हुई। लोग पर वक्त पहचान नहीं पाए, क्योंकि दौड़ते तो थे लेकिन दाढ़ी सामने होती थी, दौड़ते थे लेकिन टोपी सामने आ जाती, दौड़ते थे मस्जिदों मेहराब की आड़ मिल जाती, इसलिए कुछ लोग पहचान नहीं पाए, जिसकी बुनियाद पर यह तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। और आज भी हमारे समाज में ऐसे घिनौने कीड़े मकोड़े मौजूद हैं जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है कि एक तबका तो वो है जो सुन्नी कहलाता है लेकिन मजहब से आजादी का नारा लगा रहा है, एक तबका वो है जो नबी की साथ को ही डायरेक्ट मादल्ला निशाना बना करके तयावना की सूरत में, वहाबिया की सूरत में, ये मुनाफिकीन मुर्तद्दीन, कोई चकलालवी है, कोई दरभंगी है, कोई भवनी है, न जाने कैसे कैसे अकायद लेकर के उठे और नबी की साथ को टारगेट करके उन्होंने माज़अल्लाह कहा पीठ पीछे की खबर नहीं, ये तो हमारी तरह मामूली बशर है, माज़अल्लाह जानवरों का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज हो जाती है, मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ऐसी घिनौनी हरकतें, घिनौने अकीदे लेकर के उठे, ये तो खैर मनाओ कि रब ने आज जिन्हें तुम हकीर गरीब समझ रहे हो, जिन्हें तुम ताना दे रहे हो, ये तो करम था, रब ने किसी फैक्ट्री से नहीं, किसी बड़े कॉलेज से नहीं, किसी दौलतमंद से नहीं, बल्कि मदरसों की चटाइयों पर बैठने वाले उलमाए कराम आलिमे दीन को बर वक्त होशियार कर दिया और उन्होंने उठ करके जब गिरिबाने नापी तो वादी रजा की को हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, चार जानिब से हमले। एक कौम है जो करीब महीना आ रहा है, उठेगी बस हो गया, मजहब कहा कदा है, पुचुर पुचुर कह लो, मजहब कहा कदा। एक कौम तो वो निकली और एक कौम तो हमेशा निकली रहती है भाई, जिनको निकाल दिया वो निकले ही रहेंगे ना, अंदर कैसे हो जाएंगे, तो वो हमेशा निकली रहती है। आज तक अंदर नहीं मिली, कहीं 40 के लिए निकली रहती है, कहीं और के लिए निकली रहती है। यहाँ तक कि अब तो इलेक्ट्रिक दौर आ गया तो कुल जो है वो कहे हवन पहिया बनावे लगे, चूल्हा उल्हा बनावे लगे, पहले सिलेंडर स्टोव लेके चले। हाँ, भाई दौर तरक्की कर गया तो ऐसे है, जाके पिलक लगा लगा मस्जिद में बनाओ। तो ये कौम उठी और जिस नबी ने मजहब दिया, आला हजरत सरकार ने कहा नहीं था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, सुभान अल्लाह, सुभान। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो जिस नबी ने कलमा दिया, मजहब दी, शरीयत दी, उसी नबी को उठ करके माज़अल्लाह इन्होंने गालियां दी।
अपने मौलवी मुल्लाओं को अपने सर के ऊपर बिठा करके रखा और नबी के सहाबा को, नबी के जो नवासे तक को मादअल्लाह उनके ईमान पर उंगली उठा दी, सहाबियत पर उंगली उठा दी। और यहाँ तक लिखा मादअल्लाह कि इमाम हुसैन सहाबी भी नहीं थे। अगर करबला में बच जाते तो बाद में मार देना जरूरी था मादअल्लाह। यहाँ तक लिखा जलीलों ने, यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहने वाले ये जलील कीड़े मकोड़े आज भी जमीन पर जिंदा घूम रहे हैं। लेकिन जब ये तमाम तर हरकतें कहीं मदरसों और मस्जिदों का सहारा लेकर के उठ रही थी तो ऐसा नहीं था कि उम्मत खामोश थी। रब ने उन्हीं में गयूर मुजाहिदीन उलमा को आंखें खोलने का मौका अता फरमाया। वो चाहे अल्लामा फजले हक खैराबादी की मुकद्दस ज़ात हो, हजरत मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी की मुकद्दस ज़ात हो, सैयद किफायत अली काफी की मुकद्दस ज़ात हो, ये तमाम तर हस्तियां उठी और पर वक्त जवाब देती रही। और यहाँ तक शाह वलीउल्लाह के मुकद्दस खानदान में ऐसे जाबाज लोगों ने दिल्ली की जमीन पर आंखें खोली। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे लोगों ने आंखें खोली, जहाँ की हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस की बहारें अगर दाखिल हुई हैं तो यही मुकद्दस खानदान है जिसके जरिए से मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें हिंदुस्तान में एंट्री करती है। ये तमाम तर लोग बेदार हुए और पर वक्त इन लोगों को नकेल लगाने की कोशिशें करते रहे। किताबें लिखी गई, कलमी जिहाद जारी हुआ और इन्हीं मकातिब से, इन्हीं मदारिस से उठ करके इन उलमा ने उन फितनों का जवाब दिया। मैंने कहा अगर तरक्की का नाम ये दुनिया की चीजें होती तो ये लोग कलम ना उठाते। पता ये चला कि दुनिया की दौलतें सिर्फ ये हल्क के जायके तक बाकी है, बल्कि अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भी काम करती है, नीचे जाकर सब गोबर बनती है। आप काजू खाओ जायका यहीं तक, नीचे गोबर। आप जो है कुछ भी दुनिया की कीमती ग़िज़ा खाओ, यहाँ के ऊपर ग़िज़ा, नीचे गई गोबर। ये तमाम तर चीजें अगर तरक्की की होती तो वजूद में नीचे तक भी कीमती रखा जाता। लेकिन अगर कीमती देखोगे दुनिया में तो इन्हीं दर्सगाहों से जिन उलमा ने किताबें लिख करके, मनाज़िरें कर करके हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की, उनकी बहारें सिर्फ दुनिया तक नहीं, सिर्फ वजूद तक नहीं, सिर्फ नस्लों तक नहीं, बल्कि कब्र तक भी देखी जाएगी, हश्र में भी देखी जाएगी, जन्नतुल फिरदौस में भी वो दाखिले का सबब बनेगी। हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक फिरके ने ये काम किया है तो कुल बहुत ज्यादा है, गिनाओ तो 50 जलसों न कम होगा, मतलब 50 जलसों न शुमार हो पाओ। एक मिला तो ये अभी हजरत गाजीपुर इलाके में हाजिरी हुई, अभी जल्दी भी गया था, पिछले बार में तकरीबन 2 जलसे में 7 घंटे तकरीर हो गई। 2 जलसे में हजरत 7 घंटे तकरीर हुई। और एक शमा नियाजी फिरका बिल्कुल कलकत्ता से पता नहीं कैसे बाहर चला आए, वो गाजीपुर तक पहुंच गए और जाए के कुल मेहरारू से बोल दबुआ में, हाँ परे रहे, सिगरेट पर सिगरेट चले, जब कहा नमाज तो कहा ये सिगरेट है, मुँह सिगरेट है, नमाज सिगरेट है। मतलब ये हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोगों के देखने की चीज नहीं है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। एक जने मिले तो हम कहें कहा हो तो पहले पंचवक्ता दिखा रहे हो, अब जुम्मो ना आवत हो तो कहें कि हमारे बाप हो गए, तुम कहते समझदार हो गए, के बर्बाद किया तो है। तो कहने लगा कि वो कलियर से एक बाबा आए थे, हम उनसे मुरीद हो गए, तो नमाज बारे में पूछा तो कहें कि साबिर पाक नहीं पढ़ते थे तो हमरे काकरे पढ़ी। तो उसके खिलाफ हमने कई जुमा में तकरीरें की। तो ये गाजीपुर में 3.5 घंटे के प्रोग्राम में उन्हें शमा नियाजी वालों का जवाब देना था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी गया, वो माहौल जोरदार हुआ, मसल के आला हजरत का झंडा लहरा रहा
हाँ, जो मेहरारू पैर दबावत रहे वो भागे, हमने चैलेंज किया, हमने कहा तू आ जाओ 10 मिनट खाली ही मौलवी का झेल लियो तो हम कलकत्ता तक गुलामी करे चले। हाँ, हमने कहा मसलके आला हजरत कहने के लिए हलाल हल्क का होना जरूरी है। मसलके आला हजरत कहने के लिए हलाल हल्क का होना जरूरी है, क्योंकि मसलके आला हजरत कहोगे 75 अंगूठियां बदन से निकल जाएगी। मसलके आला हजरत कहोगे ढोलक की थाप पर थिरकना बंद हो जाएगा। मसलके आला हजरत कहोगे मर्द और मेहरारू का मुकाबला बंद हो जाएगा। मसलके आला हजरत कहोगे ये रियाकारियों पर बैंड लग जाएंगे। हमने कहा मसलके आला हजरत कहने के लिए जिगर चाहिए। इस दुनिया में मुकद्दर के धनी है वो लोग जिन्हें मसलके आला हजरत पर चलना नसीब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। समानियादी वालों का सबसे बड़ा फितवा जानो तो क्या रहा भाई, कुल मार्केट में नवा लावा चाहते है ना, नवा लेटेस्ट रहेगा तो लोग जल्दी कबूल करेंगे। तो समानियादी वालों ने ऐलान किया कलकत्ता से कि मुर्गा पर कुर्बानी जायज है। समानियादी वालों ने ऐलान किया कि मुर्गा पर कुर्बानी जायज है। तो एक मिला कहीं कि यार तो सबसे 0 पॉइंट पर आएगी। अब हम कहा कहीं कबूतर पर कुर्बानी जायज है तो मतलब तो छोटा हो जी है, ज़्यादा छोटा हो जी है। और इतना ना कहो कि लोग मारे लागे, मतलब इतना कहो कि कुछ देर तक सोचें। तो तू यार मुर्गा कह जो हम कहो कहीं तो वो दूसर उठा होकर पीर कहा था एक बकरा पर 7 हिस्सा जायज। हम कहें लद लियो 7 जने मर जाए शराब पर कौन मेर चली कहाँ लिहे जा बैठो मुर्गा पता लागी। हाँ, तो मुर्गा पाओ ना पता लागी वही। तो ये समानियाजी वालों का फितरा। अच्छा, सबसे पहले ये सारा ढोंग बाद में बताएंगे, पहले आला हजरत के बारे में आपको कायदे से विस्तार से बुराई करके आपको बागी करेंगे। पहले भाई मर्डर बाद में, पहले इतना चौतरफा घेराव कर दिया जाए कि मर्डर हो जाए तो कोई चू ना करे। सेंध बाद में पहले पास पड़ोस वाले को मिलाया जाए ताकि कुकुर तक ना भूखे। जौने दिन सेंध कटा था वही दिन कुकुरों ना भूखा। तो माहौल बनाया गया। तो पहले सबसे पहले हमने कहा और किसी का बागी नहीं बनाया और किसी का नहीं। भाई 11 के खिलाफ पहले नहीं बोला, छठी के खिलाफ नहीं बोला, मुहर्रम आशूरे के खिलाफ नहीं बोला। पहले आला हजरत के ताल्लुक से क्यों बोला? पता ये चला कि अगर यही अपना लिए तो इसके आड़ में 11 भी बच जाएगी, छठी भी बच जाएगी, आशूरा की हुर्मतें भी बच जाएगी। क्योंकि आला हजरत ठेकेदार का नाम नहीं, दीन के चौकीदार का नाम है। सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हरकतें पहले आला हजरत के खिलाफ बगावत है। अब भाई बगावत करेंगे कुछ चाहिए ना, मटेरियल चाहिए। तो ये गिले कुछ ना पाए तो कहीं की आला हजरत करिया रहे। भाई हेरत है ना कि कुछ मिला, तो हेरत कुछ ना मिला तब कहीं इसकी करिया रहे। लेकिन उन्हीं के खानदान, उन्हीं की पुश्तों की चमक लेकर के जब ताजुल शरिया पहुंचे तब कहा कि सब झूठे हो। माशाअल्लाह। जब उन्हीं के खानदान की चमक लेकर ताजुल शरिया पहुंचे, जो चेहरा देखे वो कलमा पढ़ने के लिए दीवाना हो जाए। जब ताजुल शरिया का चेहरा देखा तो उन पाकियों को झूठा कहा गया। कहा जब ये पोते की चमक का आलम ये है तो आला हजरत के दीदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कुछ चाहिए, बकवास करे के लिए कोनो पॉइंट चाहिए। जैसे लोग मस्जिद के इमाम के खिलाफ जब कुछ प्रोपेगेंडा करा चाहता है तो एक कटिंग चाय के आर्डर दिन होटल का तो बैठा रहे, कौने ओर से शुरू करी कि लाग जाए। तो
कुछ नहीं पाए एक जने तो ये कहीं इमाम साहब खड़ा हुआ था तो गोलवा आगे पीछे रहा था। तो हम कह पिछवा तो है यही लिए खड़ा किया जाता है कि जैसे आगे पीछे हुए जाके ठोक के सही कह दिया। कुछ नहीं पाए तो होटल पे यही बकवास, आगे पीछे रहता है। इमाम साहब चलत है तो करेंगे ज्यादा हिलत है। इमाम साहब पहले जब आए रहे हमरे किया 5-10 साल पहले तो ऐसे रहे, अब ऐ हो गए मुर्गा खा चर्बी आए गए। पहले आए रहे तो पैदल चलत रहे, अब जो है पल्सर अपाची पर चलत है। इमाम साहब के मतलब बिल्कुल मजा है भैया, मजा काटे रहो मजा है। हमने कहा फिर छोड़ दे पीओपी सऊदी दुबई ये सब छोड़कर आजा तू भी मजा मार। अपनी औलादों को तो दुबई भेज दिया और इमाम को मजा ही मजा कहकर चिढ़ा रहा है। हमने कहा जलीलो अगर कान के अजान से लेकर जनाजे की नमाज तक की बहारें गांव में देख रहे हो तो तेरे बेटे कोएत वाले की कमाई का नतीजा नहीं है, इसी चटाई पर बोलने वाले इमाम की मेहनतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद। बगावत किया भाई, मसलक की बगावत सबसे पहले यही कर दो ताकि हिफाजत खत्म हो जाए। जब पहले भाई यही उतरौला बहुत दूर ना है, उतरौला में एक जगह है, अब बहुत विस्तार से नहीं बताए, मैं पूछे चला जाओ मतलब उतरौला है एक जगह। एक जने जरूरत से ज्यादा टोपी का ऊंचा किहिन और ढोलकी बाजा तो जुब्बा पहन के जब नाचे लागे तो हवा अंदर भरा। जुब्बा पहन के नाचे लागे तो हवा अंदर भरा तो दूर तक के अपना जो जितना तूल अर्ज कबूल कर सकत रहा कि गन्नन गन्नन जब चले हैं दाढ़ी टोपी और जब आपा का डांस हुआ है तो सब खाली झूम रहे थे। किसी को हाल आ गया वहीं छटपटाए लागे, कुछ लोग कहीं बिछी छेतीस के हाल आवा है। तो ये हरकतें शुरू हुई। अच्छा उनसे पूछो आला हजरत तो चुप रहा, आला हजरत का नाम ना लो। सिद्दीक़ अकबर को भूल करके आला हजरत कह रहे हो, हजरत उमर को छोड़कर आला हजरत कह रहे हो, हजरत जो है उस्मान गनी हजरत अली को छोड़कर आला हजरत कह रहे हो। यही कहते हैं ना लोग कि जब आप कोई काम करने लगे तो उससे पीछे वाली तारीख दोहराते हैं। जैसे आप मुहर्रम का प्रोग्राम करें तो कह रहे हैं कि बद्र के शहीदों को तुम भूल गए, खाली मुहर्रम वालों को याद कर रहे हो। ओहद के शहीदों को तुम ओहद के शहीदों का बैनर नहीं लगा रहे हो, मुहर्रम वालों की सिर्फ याद कर रहे हो, मुहर्रम का किचरा बना रहे हो। खंदक तबूक वालों को नहीं याद कर रहे हो, मुहर्रम वालों को सिर्फ बैनर लगा रहे हो, किचरा बना रहे हो। उन्हीं के नाम का नारा, उन्हीं के नाम का नारा। हमने कहा सुनो जलीलो, बद्र ओहद खंदक तबूक करबला से पहले जितनी जंगें हुई है वो इस्लाम फैलाने के लिए है। करबला की जंग इस्लाम बचाने के लिए है। तो फैलाने वालों का जिक्र होगा सुभान अल्लाह, लेकिन बचाने वाले का नुमाया जिक्र किया जाएगा। क्योंकि करबला ना होता ओहद की तारीख ना मिलती, खंदक तबूक की तारीख ना मिलती, सहाबा की जिंदगियों की तारीखें मिटा दी जाती। ये तो एक करबला का सजदा है, सजदा-ए हुसैनी, जिसने उम्मत की आबरू रख ली। तो ओहद के शहीदों को मुबारकबाद, लेकिन मीरे करबला को मेरा सलाम, जिसने नाना के 63 साला कुर्बानियों को अपना लहू देकर महफूज कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ऐसे जब आप आला हजरत का नाम लीजिए तो बकवास होगी। तुलसीपुर में बैठ गए होटल पर यहाँ चाय के चुस्की ले हैं और कहें हम भाई एक बात बताओ, अब कहीं पूछो ना, हमारे समझ में आया हो कि गरीब नवाज से ज्यादा आला हजरत का काहे नारा। तो हम कहें तो सुबह शाम पैन भी खावा करो, तुम्हारे गैस की बीमारी है, हाँ तबीयत ना ठीक, भाई तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा। आला हजरत का नारा हम लगाते हैं, दर्द तुम्हारे काहे हुआ था।
तो कुछ ऐसा मामला होता है कि करो कहूँ और असर कहूँ और दिखाओ। हाँ, असर कहीं और दिखता है। जैसे कोनो पास पड़ोस में झगड़ा हो जाए, खुदा ना करे तोहरे कहीं झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा हो जाए तो अब उसका चिढ़ावे के लिए वो अपने आंगन में ही है, अपने आंगन में है, लड़का कहीं मारत है, अब कहा था इतना रगड़ दिया कि पड़ोसी घर तुम मिट जाओ, पड़ोसी तक पहुंच गए। मतलब दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजें हैं जो काम कर जाती है। तो अब मसलक का नारा लगा, दर्द तुमको क्यों पहुंचा गरीब नवाज। अच्छा, वहां भी बीच में जो खुराफात हुई थी आपको मालूम हुआ था। जिस दिन खुराफात हुई हजरत, उस दिन इस्तेफाक किए हम जो है वहाँ बिहार के जलसे में थे, समस्तीपुर साइड, और यूट्यूब पर तकरीर वो पड़ी हुई है जो उस दिन तकरीर हुई थी। तो सारा मौजू एक तरह, अजमेर फिर मौजू चला 2.5 घंटा। हाँ, 2.5 घंटा। हमने कहा मस्जिद की बेहुरमती जिससे हो जाए वो अपने आप को खुश नसीब न समझे बल्कि अबू जहल के ग्रुप का समझे। हाँ, तुम सलाम पर पाबंदी, यहाँ वो सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। हमने कहा जलील, अजमेर में ना पढ़ा जाए लेकिन मदीना में जरूर पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह। जिस सलाम पर पाबंदी, तुम ये चीजें करके क्या साबित करना चाहते हो? हम कहें देखो हर बात के औकात नहीं मानी जाती। जैसे तुम यहाँ से निकलो तुलसीपुर चौराहा पर, यहाँ एक रिक्शा वाला प्रधानमंत्री कुछ कहत रहा, तो आयो गांव में कहो माहौल मुल्क के खराब हो गया, प्रधानमंत्री के जान खतरे में यहाँ है, कहीं हवा का कोनो परमाणु साजिश, कोनो बाहरी विदेशी अटैक, तो कहे नहीं, एक बैटरी रिक्शे वाला बहुत गुस्सा रहा है। कहते बैटरी रिक्शे वाला बात करो, तो ऐसा के बात करो जेके जबान के औकात हो, जबान के औकात हो। तो हमने कहा राफजी मुजावरो, तुम बैटरी रिक्शे वाले से भी कमजोर हो, ऐसी जबानों की औकात नहीं देखी जाती। आला हजरत तुम कहो ये दलील नहीं बनेगी, मक्का के उलमा आला हजरत कहेंगे दलील बनेगी, मदीना के शयूख आला हजरत कहेंगे दलील बनेगी, अरब में, अजम में, यूरोप, अमेरिका में आला हजरत का नारा लगेगा दलील बनेगी। अरे जिनकी पेशानी को देखकर कहा गया हो अगर इमाम आजम अबू हनीफा देखते तो उनकी भी आंखें ठंडी हो जाती, जिनकी तहरीर देखकर अश किया गया हो तो वो आला हजरत का मकाम है कि जहां वलियों की जबानों पर भी सराहनी के अल्फाज आला हजरत के ताल्लुक से मजजूब तक जिस जात का अदब करे वो जात आला हजरत की, तकबीर ऊला तक जिसकी फौत न हुई वो जात आला हजरत की, सुन्नतों का जो सख्त पाबंद रहा वो जात आला हजरत की, जिसने टूटी चटाई पर बैठकर दुनिया का खैरात नहीं खाया बल्कि खैरात बांटता रहा और उम्मत को तोहफे में कंजुल ईमान, फतावा रज़विया, हजारों से जायद किताबें अता करके ऐलान कर दिया कि गरीब नवाज का 90 लाख को कलमा पढ़ाना ये मुबारकबाद के काबिल है, लेकिन 90 लाख के ईमान की हिफाजत करने वाले का नाम आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये चड्ढी गैंग वालों ने साजिश की थी कि कौनो हिसाब से आला हजरत का बुराई करे, बस इनके लोग के मामला सब ठंडा पड़ जाएगा। अरे ये तो हमरे में तनी भर कमजोरी है, हमरे लोग थोड़ा सा मतलब तनी हम मोटाए जाए थे ना, जैसे तनी भर घर पर साल में 2 बाजी पेंट लाग गो, बस हमारे गिरिबान में 2 बटन खुल जाते थे। कौन है हमारी तरह गाँव में? चुप रहा, गाँव में कौन है? सब है तोरी तरह गाँव में, मैं तोरे 4 हाथ थोड़ो है, सबके 2 हाथ तो तोरे 2 हाथ। कौन है हमारी तरह? ये थोड़ी सी गड़बड़ी हमारे अंदर हो जाती है जिसकी वजह से इन लोगों को कहने का मौका मिलता है। जैसे औरतों का कसरत से मजार पर जाना,
अच्छा जाए क्या हुआ लागी वही पूरा झोटा वोटा खोल के वही यहाँ वो कोनो वीडियो बना ली और वीडियो बना के हुआ ले जाके मक्का मदीना में वो सैखन का दिखावा था। ये है मसलक के आला हजरत। हाँ, हमारी हरकतें कैमरों में अब कैद होती है। ये है मसलक के आला। देखा भांगड़े पर आप नाच रहे हो, दूल्हा बना जा रहा है, कुछ लोग बीच में और मतलब जोर से निकाली हाजी साहब पूरा पैसा अदा, जितना हज में खर्च की ना सब अदा। एक जिन्हें डायरी लिखत रहे तो खाली कलीमुल्ला लिख दी तो वो गुस्साए के मारपीट पर उतार हो गए तो कहीं भावा का कलीमुल्ला गलत लिखा है, कहीं ना इमला गलत है, कहीं ना ही नाम है, कहीं नाम है। काहे बिगड़ गए अगवा हाजी ना लिखा, हाजी ना लिखा तो 4 हाजी टोपी लगाए पीछे पीछे चलत रहे, आगे दुल्हा रहा और दुल्हा के गाड़ी सबसे आगे डीजे वाले गाड़ी सब नाचत जात रहे। कोनो वीडियो बनाए, इस वीडियो बनाए के हुआ भेजी मरकज में अपने। ये है मसलक के आला हजरत वाले, ये है बरेलवी। हाँ, वीडियो पे रिकॉर्ड करके ये है बरेलवी। मतलब जो भी हरकतें हम लोग में कुछ बदमाश तबके के लोग कर डालते हैं, वो हरकतें रिकॉर्ड होकर दिखा करके उनको गुमराह किया जाता है। हमने कहा जलीलो तुमने ये हरकतें शुरू कर दी, अगर ये चीजें अगर रिकॉर्ड करने पर आ जाए तो हम तुम्हारे गुरूर से जो रिकॉर्ड करेंगे ना तो तोहार बाप मस्जिद में जूता चुरावत मिली है। सही बात। हाँ, अगर हम रिकॉर्ड पे आ जाएंगे तो बहुत खतरनाक रिकॉर्ड मिली। हाँ, जेका तो गुरु घंटाल मांगत हो अपने भाई के दाल में है कुकुर के पिल्ला डाले पड़ा है, देखा जाल लो। हम रिकॉर्ड खतरे है। हाँ, कुल करम की है आए के कहीं 100 चूहा खाए के बिल्ली हजमा चली, हम कहीं जाए जो का हजमा ने 200 और खाए ली। ये हरकतें रिकॉर्डिंग करके बदनाम करने की कोशिश, हमने कहा मोबाइल पर टिकी हुई सात आला हजरत की नहीं है। जहां इल्म का हल्का लगेगा, उलमा जहां बैठेंगे तो तेरे नदवा के कुतुब खाने में भी जिसकी किताब मुस्कुराएगी वो सात आला हजरत की है। मोबाइलों पर रिकॉर्ड करके तुम बदनाम नहीं कर सकते। कौम में चंद लोग बिगड़े तो गलती मसलक की नहीं अफराद की मानी जाती है। इसलिए आला हजरत पर उंगलियां उठाने वालों, तुम्हारे इदारों में भी जिनके किताबों की हरारत मौजूद है वो जात तुम्हारे बाप की नहीं आला हजरत की है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। रिकॉर्डिंग दिखावत, रिकॉर्डिंग ले जाके किछौछा में यह अक्सर को रिकॉर्ड करत है। किछौछा में ज्यादा अबुआ था। हाँ, ज्यादा अबुआ था। और अबुआ तो छोड़ो, कोई मिला हमरे समझ में अबुआत नहीं, छोट नहीं लड़की अबुआत नहीं। कुछ देर के बाद वहां पानी पियत मिली तो कहीं हम सही करत रहे कि नहीं, कहीं नहीं ठीक तो रहा। हाँ, तो यहू मेरा बुआ वाले। तो ये हरकतें रिकॉर्ड करके ये मसलक को बदनाम करना चाहते हैं, नाचने वालों को देख करके मसलक को बदनाम करना चाहते हैं। हमने कहा ये चंद बदमाशियों से तुम मसलक के आला हजरत को दागदार नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसके सपोर्ट में जिसकी तमाम तर फिक्रो नजर की हिफाजत में और सलामो कलाम की हिफाजत में, फतवे की हिफाजत में, कलम के आबरू की हिफाजत में सपोर्ट मदीने वाले का हो, हाथ बगदाद वाले का हो, दुआ मोइनुद्दीन अजमेरी की हो, ऐसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए रिक्शे वाले की बातों पर यकीन न करना। रिक्शे वाले की जबान का एतबार नहीं होता, बात बड़ों की होती है। तो बड़ों का मामला हमारे जितने बड़ों से पूछोगे
तुम्हारे जितने बड़े सब काफिर ही नजर आएंगे और हमारी बात अपने बड़ों से पूछोगे तो अशरफ अली थानवी हो, तारीफ आला हजरत की मुर्तजा दरभंगी हो, तारीफ आला हजरत की जो है अब्दुल शकूर का जो है काकोरवी हो, तारीफ आला हजरत की जितने भी तुम्हारे बड़े गुजरे हैं उन सबों ने आला हजरत के कलम का लोहा माना है। कहा अकीदे का इख्तिलाफ अपनी जगह, हमारा उनका मसला अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक सवाल घुमाया जाए जिसका जवाब कहीं न मिले तो सारे मकतबों मदरसों के दरवाजे बंद होंगे। अगर कोई शेरे बबर की तरह दरवाजे से निकल कर कहेगा इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वो ज़बान आला हजरत की है, वो फिक्र आला हजरत की है, वो कलम आला हजरत का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कमानुद्दीन साहब किबला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए ये चिपड़ी चिपड़ी बातों पर हम गौर ना करें। भाई छोटी छोटी बातें करके चुन्नू चुन्नू, तो उससे ये सोच रहे हो कि पूरा मसला दारदार हो गया। नहीं, हमने कहा सलाम ना पढ़ने दो ना, तुम्हारे बाप के औकात नहीं है कि सलाम पढ़े से रोक लो। भाई आपन जबान रोक सकत हो, सबके जबान थोड़ो रोक सकत हो। और जबान दो है, एक ठो ई है, एक ठो ई है। हाँ। तो ये जहाँ बंद होती है ये चालू हो जाती है, हाँ ये फौरन शुरू हो जाती है। तो सलाम पर क्या बैंड लगाओगे? और रहा असरो रसूख का मामला, तो आज भी उस चौखट के शेर को तुम डिलीट ना कर सके। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वो आपके मजले भाई अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी का शेर है, जो अजमेर में गरीब नवाज की चौखट पे मुस्कुरा रहा है, क्योंकि किसी ने सवाल किया था आला हजरत से कि सरकार एक आदमी अजमेर शरीफ के बजाय सिर्फ अजमेर कहता है, उसके बारे में आपका हुक्म क्या है? तो कहा अगर शहर समझकर सिर्फ अजमेर कहता है तो बात कोई नहीं, और अगर गरीब नवाज सरकार को जानकर भी अजमेर शरीफ के बजाय अजमेर कहता है तो फिर उसकी जांच की जाए। उसके ईमान और अकीदे में गड़बड़ी हो चुकी है, वो खता पर है, उसकी जांच की जाए। तो जिस आला हजरत के नजदीक अजमेर मोहल्ला की जमीन इतनी कीमती हो, उनकी निगाहों में मोइनुद्दीन कितने कीमती हो गए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन, अल्लामा गुलाम, अल्लामा। इसलिए ये चीज याद रखे साहब, ये चीज याद रखे। देहाती मसल है ना, देहाती मसल, टिटिहरी के आसमान ना रुकत। हाँ, टिटिहरी के बारे में देहाती में मशहूर है, अब हम देखे ना है, लेकिन कहा था सबे कि टिटिहरी जब सोवत थी तो पलिहर में यहाँ पीठी पले सोवत थी, ऊपर जो है टांग की है रहा थी ऐसे कि कब वो गिरे आसमान अगर तो यही पर रह जाए हम बच जाए। हाँ, ये टिटिहरी का मसल मशहूर है कि ऊपर टांग करके सोवत थी कि कब वो आसमान जैसे फाट पड़े। हम कहें वो लागत है वहाँ भी ही अकीदा नहीं सही है, खुदा की साल पर भरोसा नहीं है, वो वहाँ भी नहीं है। टांग फैलाए के ऊपर जैसे आजो तक तो लोग टिटिहरी का टांग फैलाओ नहीं मस्जिद में, हाँ टांग फैलाओ तो हम कहें दूसरे की जमीन गसब करने वाला मुकदमा तोहरे ऊपर दायर हुई है, जहाँ 4 आदमी खड़ा हो सकत रहे उनको अकेले छकाया। एक जने गलती से पहुंच गए, देखिए कि कोनो इतना फैला है, कोनो इतना फैला है, और कोनो जो है हिया बान है, कोनो हिया बान है, कोनो हिया बान है, तो वो पहुंचे तो हिया बान। अब कुल मिले देखे लागे कि नवा फिरका कौन आवा हमरे नहीं जान पाए। तो जब पूछें कि ये का करत रहो तो कहीं नहीं कि हम देखें कहूँ जगह है नहीं खाली रात, तो हम कहें कुछ नवा करें। हाँ, ये है मसलक से बगावत का नतीजा, दीन से बगावत का नतीजा,
क्योंकि दरबार रसूल के दुलारे का नाम आला हजरत है। सिद्दीक़ उमर, उस्मान गनी, उस्मान हैदर के फिक्र अमल के मुहाफिज का नाम आला हजरत है। करबला वालों के फिक्र नजर की हिफाजत करने वाले का नाम आला हजरत है, जिसने उन कुर्बानियों को महफूज करके रख दिया और सादात के ताल्लुक से उसने कंधे पर डोली रख करके पूरी दुनिया में आले रसूल के